আপনারা দেখছেন জেলা সংবাদ টিভি, খবর সব সময়। সবাই জোরে করতালি দিন। নৈহাটির অমৃত ভারত স্টেশনের শিলান্যাস ঘটল পদ্মশ্রী শ্রী সনাতন রুদ্র পাল মহাশয়ের হাত ধরে। শিলান্যাস ঘটল পদ্মশ্রী শ্রী সনাতন রুদ্র পাল মহাশয়ের হাত ধরে। বলে দিয়েছেন তো, বলে দিচ্ছেন। पीछे पीछे और पीछे और पीछे, चलो पीछे पीछे पीछे। अरे साइकिल जानो मत আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। এছাড়াও আমাদের মতো অনুষ্ঠানের যিনি কোঅর্ডিনেটর, আমরা নৈহাটি স্টেশনে উপস্থিত হয়েছি। সারা ভারতবর্ষে আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীজি সকলকে বিভিন্ন প্রকল্প আজকে হয় ইনঅগারেশন করছেন, অথবা ডেডিকেশন টু দ্য নেশন করছেন, অথবা ফাউন্ডেশন স্টোন লেইং করছেন। এতে সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্টেশন আছে, প্রায় 1500 জায়গায় এটা করা হচ্ছে। 41,000 কোটি টাকার প্রকল্প আজকে অ্যানাউন্সমেন্ট করবেন অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার। ইস্টার্ন রেলে আমরা 28টি স্টেশনে এই ধরনের প্রকল্প করছি, যাতে স্টেশন ইমপ্রুভমেন্টের জন্যে, যাত্রী সাধারণের জন্য আরও বেটার ফেসিলিটি যাতে দেওয়া যায় এবং একটা সার্বিকভাবে ইমপ্রুভমেন্ট হয় বিভিন্ন স্টেশনে। এছাড়া অ্যাবাউট 30 থেকে 35টা জায়গায় লেভেল ক্রসিংয়ের পরিবর্তে আমরা রোড ওভার ব্রিজ বা রোড আন্ডার ব্রিজ তৈরি করব। সেই প্রকল্পেরও আজকে ফাউন্ডেশন স্টোন লে করা হবে। নৈহাটি স্টেশন ঐতিহ্যবাহী স্টেশন এবং তাতেও আমাদের প্রায় 8 কোটি টাকার প্রকল্প স্যাংশন হয়েছে এবং ধীরে ধীরে আপনারা অলরেডি কিছু কাজ শুরু হয়েছে, একটু সময় লাগবে, কিন্তু এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস হিসেবে নৈহাটি স্টেশনকে, এবং শিয়ালদা ডিভিশনে 8টা স্টেশন আছে, সারা পূর্ব রেলওয়েতে 28খানা স্টেশন আছে, সারা পশ্চিমবঙ্গে 45টা স্টেশন এরকম আছে, কিছু পূর্ব রেলে, কিছু দক্ষিণ পূর্ব রেলে এবং কিছু নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়েতে। এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিভিন্ন জায়গায় এসেছেন। আমার পাশে বসে আছেন শ্রী সনাতন রুদ্রপাল, জগৎ বিখ্যাত সনাতন রুদ্রপাল, যিনি যার মা দুর্গার প্রতিমা দেখে আমরা ছোটোবেলার থেকে এবং বড় হয়েছি, এবং উনি এসছেন। আমরা গর্বিত যে উনি আমাদের সঙ্গে আছেন আজকের অনুষ্ঠানে। আমার নাম সৌমিত্র মজুমদার, প্রিন্সিপাল চিফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার পূর্ব রেলওয়ে।
যে এরকম একটা জায়গায় আসতে পেরে আমি খুব আনন্দিত এবং নিজেকে খুব গর্বিত মনে করছি। যদিও আমি পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছি, সেই সুবাদে এনারা আমাকে এখানে এনেছেন। দেখা যাক এবার অনুষ্ঠান আরম্ভ হোক, তারপর বুঝতে পারবে এর মহিমা কতটা, কত দূরের অগ্রগতি। হচ্ছে সনাতন রুদ্র পাল। অনুষ্ঠান শুরু হতে চলেছে। আজকের দিনে একটা একটা বড় উৎসব বলতে গেলে, এখানে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে সমস্ত 54টা স্টেশন মডিফিকেশন হচ্ছে এবং এইটা নৈহাটি এবং দমদম অঞ্চলে যে সমস্ত মানুষরা খুব সুবিধা পাবে এরকম একটা সুন্দর একটা স্টেশনের উদ্যোগে, এবং আমাকে যে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে তার জন্য আমি ইস্টার্ন রেলের কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। আমার নাম বিশ্বজিৎ পালিত, অর্জুন আওয়ার্ডি, কাবাডি প্লেয়ার। অসংখ্য ধন্যবাদ সকলকে। আমি আমাদের স্টেজে উপস্থিত আমাদের বিশেষ অতিথিগণ, एक बनाने हेतु ईमानदार प्रयास किया गया। प्रतिवर्ष हासिल की जाने वाली छोटी छोटी उपलब्धि समर्पण होने जा रहा है। इस अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मीडिया के साथी और देश भर में 2000 से अधिक स्थानों पर जुड़े महानुभाव, आप सभी का विश्व के सबसे बड़े स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम में आज हार्दिक स्वागत है। एक साथ 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट विश्व के रेलवे इतिहास में अभूतपूर्व है। इतना बड़ा संकल्प केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत, लगातार रिव्यू, सदैव मार्गदर्शन, सभी बाधाओं को दूर करना, ऐसी तपस्या केवल एक तपस्वी प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ये हमारी जनरेशन का गौरव है कि ऐसे तपस्वी प्रधानमंत्री जी आज देश में रेलवे का कायाकल्प कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशनों का भूमि पूजन किया था। इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है। आज 554 स्टेशंस का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन सभी स्टेशनों पर भी तेजी से काम करने का संकल्प लेंगे। आगामी महीनों में इनमें से कई स्टेशन इनॉग्रेशन के लिए तैयार होंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने रेलवे में कई नए रिकॉर्ड बनाए। 31,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनी है, यानी इटली और फ्रांस जैसे देशों के रेलवे नेटवर्क में जितनी रेलवे लाइन है उससे ज़्यादा रेलवे लाइनें पिछले 10 वर्षों में भारत में मोदी जी ने जोड़ी है। 2014 में मात्र 4 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइनें बनती थी। आज 15 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है। इस वर्ष 5,500 किलोमीटर रेलवे लाइन भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगी, यानी स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के जितनी रेलवे लाइन इस वर्ष भारत में जुड़ेगी। 10 वर्षों में 280 किलोमीटर से अधिक बन गया है। संगलदान तक ट्रेन से यात्रा संभव हो गई है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क पर ऐतिहासिक काम हुआ है। सबका विकास
इसी मंत्र के साथ काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विकसित भारत का फाउंडेशन स्थापित कर रहे हैं। भारतवर्ष सदियों तक आपका ऋणी रहेगा। रेलवे को इतना समय देने के लिए, लगातार मार्गदर्शन देने के लिए और रिकॉर्ड बजट देने के लिए 140 करोड़ देशवासी आपको सदैव आभार प्रकट करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत बहुत जय। कि अभी कितने लोग जुड़े हैं, कितने स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है, अगर गवर्नर वगैरह पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे, उसकी कुछ जानकारी है तो अगर बता सकते हैं तो बताइए। जी सर, करीब 2021 स्थानों पर लोग जुड़े हैं और करीब 40 लाख टोटल लोग जुड़े हैं आज 2021 स्थानों पर। माननीय गवर्नर्स 20 एलजी साहब और गवर्नर साहब जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। माननीय मुख्यमंत्रीगण 11 स्थानों पर जुड़े हैं 11 राज्यों में। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स 8 जुड़े हैं। 14 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जुड़े हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट 26 जुड़े हैं सर। और राज्यों में मंत्री 156 जुड़े हैं। 590 सांसद जुड़े हैं और 1196 विधायक जुड़े। कई दिनों तक कार्यक्रम में 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण। भारतीय रेल, जिसे लेकर महज एक दशक पहले तक एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता, पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास। नए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का किया गया निवेश और बदल गई रेलवे की तस्वीर। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। पिछला दशक प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और स्पष्ट नीति को दर्शा रहा है। तभी तो मात्र 10 वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और दोहरीकरण हुआ। 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हुआ। 6,000 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा डिजिटल इंडिया की पहचान बन रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई में तेजी आई है, तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वदेशी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है। देश भर में स्टेशनों के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण का काम बड़े स्तर पर एक अभूतपूर्व गति से हो रहा है। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय करने के लिए 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन हो, गुजरात का गांधीनगर कैपिटल स्टेशन हो, बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस हो या श्री राम जन्मभूमि स्थित अयोध्या धाम स्टेशन आज बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे। अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं।
इसी दिशा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ रहा है। 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से अधिक रेल परियोजनाओं की देशवासियों को दी जा रही है सौगात, जिसमें शामिल है 554 स्टेशनों का कायाकल्प और 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पित कर रहे हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पुनर्विकसित गोमती नगर रेलवे स्टेशन और कर रहे हैं वर्चुअल शिलान्यास देश भर में 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का। ये अमृत स्टेशन बनेंगे सिटी सेंटर, जो हमारी महान संस्कृति, लोक विरासत और स्थानीय वास्तुकला को दर्शाएंगे। यहाँ होंगे एयर कॉन्कोर्स, आधुनिक वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट और किड्स प्ले एरिया, पर्याप्त पार्किंग की सुविधा, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और आवागमन के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार जैसी सुविधाएं। साथ ही ये स्टेशन होंगे पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग फ्रेंडली भी। पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। सुगम रेल और सड़क यातायात तथा रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यात्रा में समय की बचत के लिए देश भर में ओवरब्रिज और अंडरपास का लगातार हो रहा है निर्माण। 2014 से 2023 के दौरान 10,000 से अधिक रेल लाइन के ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का काम पूरा हुआ है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं शिलान्यास और लोकार्पण देश भर में 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा है। निर्माण की अभूतपूर्व रफ्तार की मोदी सरकार की गारंटी से सुनिश्चित होगा विकसित भारत का संकल्प। जय हिंद। नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और 1,500 से ज्यादा दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, पद्म पुरस्कार जिनको सम्मानित मिला है, ऐसे वरिष्ठ महानुभाव, भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवानी खपाने वाले हमारे स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर और हमारी भावी पीढ़ी, युवा साथी भी आज हमारे साथ। आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। अभी तो इस सरकार के
तीसरे टर्म की शुरुआत जून महीने से होने वाली है। अभी से जिस स्केल पर काम होना शुरू हो गया है, जिस स्पीड पर काम होना शुरू हो गया है, वो सबको हैरत में डालने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने जम्मू से एक साथ IIT, IIM जैसे दर्जनों बड़े शिक्षण संस्थाओं का लोकार्पण किया। कल ही मैंने राजकोट से एक साथ 5 एम्स और अनेक मेडिकल संस्थानों का लोकार्पण किया। और अब आज का ये कार्यक्रम है, आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। आज यूपी के जिस गोमती नगर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ है, वो वाकई कमाल का दिखता है। इसके अलावा आज 1500 से ज्यादा रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही है। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। ये दिखाता है कि भारत की प्रगति की रेल किस गति से आगे बढ़ रही है। मैं देश के विभिन्न राज्यों को, वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आज विशेष रूप से अपने युवा साथियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। मोदी जब विकसित भारत की बात करता है तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज रेलवे का जो एक कायाकल्प हो रहा है, ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ये कायाकल्प उनके भी बहुत काम आएगा जो 30-35 वर्षों से कम आयु के। विकसित भारत युवाओं के सपनों का भारत है, इसलिए विकसित भारत कैसा होगा ये तय करने का सबसे अधिक हक वो भी उन्हीं को है। मुझे संतोष है कि देश भर के हजारों विद्यार्थियों अलग अलग स्पर्धाओं के माध्यम से विकसित भारत के रेलवे का सपना सामने रखा। इनमें से अनेक युवा साथियों को पुरस्कार भी मिले। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश के हर जवान को, हर नौजवान को बताना चाहता हूं कि आपका सपना ही मोदी का संकल्प है।
आपका सपना, आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प, यह विकसित भारत की गारंटी है। साथियों, मुझे खुशी है ये जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है, सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखेगा। राजस्थान का सांगनेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल काल के वास्तुकला पर आधारित है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है। गुजरात में द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आईटी के लिए ही समर्पित होगा। यानी अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएगा। इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। साथियों, बीते 10 वर्षों में हम सभी ने एक नया भारत बनते देखा और रेलवे में तो परिवर्तन साक्षात हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। जिन सुविधाओं की हमारे देश के लोग कल्पना किया करते थे, लोगों को लगता था कि काश भारत में ये होता तो, लेकिन आप देखिए जो कभी आप कल्पना में सोचते थे, आज हम आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हैं। एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था, किसी सरकार ने कभी बोला भी था? एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। एक दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। एक दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी। आज ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से वे रोक-टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। साथियों,
दशकों तक रेलवे को हमारे यहाँ की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन गया। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रहे हैं। ये सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। 10 साल पहले जब हम 11वें नंबर पे थे, तब रेलवे का औसत बजट 45,000 करोड़ रुपए के आसपास रहता था। आज जब हम 5वें नंबर की आर्थिक ताकत है, तो इस वर्ष का रेलवे बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। आप कल्पना कीजिए, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, तो हमारा सामर्थ्य कितना अधिक बढ़ेगा। इसलिए मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जी जान से जुटा। लेकिन साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहे, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर इस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईमानदारी से काम हुआ, तभी 2,500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हुआ। यानी आपने टैक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। हर रेल टिकट पर भारत सरकार करीब 50% डिस्काउंट देती है। साथियों, जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते हैं, नए रोजगार बनते हैं। जब नई रेल लाइन बिकती है तो मजदूर से लेकर इंजीनियर तक अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक उद्योगों, दुकानों में नई नौकरियों की संभावनाएं बनती हैं। यानी आज जो ये लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, यह हजारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी है। जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे, ज्यादा ट्रेनें रुकेगी, ज्यादा लोग आएंगे,
तो आसपास रेहड़ी पटरी वालों को भी इससे फायदा होगा। हमारी रेल छोटे किसानों, छोटे कारीगरों, हमारे विश्वकर्मा साथियों के उत्पादों को बढ़ावा देने वाली है। योजना के तहत स्टेशन पर विशेष दुकानें बनाई गई है। हम रेलवे स्टेशनों पर हजारों स्टॉल लगाकर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं। साथियों, भारतीय रेल यात्री सुविधा ही नहीं है, बल्कि देश की खेती और औद्योगिक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है। तो समय बचेगा, इससे दूध, मछली, फल, सब्जी ऐसे अनेक उत्पादन तेजी से मार्केट पहुंच पाएंगे। इसमें उद्योगों की लागत भी कम होगी। इससे मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक माना जा रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आने वाले 5 वर्षों में जब ये हजारों स्टेशन आधुनिक हो जाएंगे, भारतीय रेल की क्षमता बढ़ जाएगी, तो निवेश की एक और बहुत बड़ी क्रांति आएगी। भारतीय रेल को अपने कायाकल्प के इस अभियान के लिए मैं एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों को भी एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा बनना, एक ही कार्यक्रम में लाखों लोगों का जुड़ना, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का समय निकालना, गवर्नर जी का समय मिलना, ये अपने आप में आज का ये कार्यक्रम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर के आया। मैं मानता हूं ये रचना बहुत ही उत्तम प्रकार की आज के कार्यक्रम की रचना बनी है। आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सर्वाधिक अच्छा उपयोग करते हुए विकास की गति को एक साथ चारों दिशाओं में तेजी लाएंगे। ये आज हमने देख लिया है। आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। নৈহাটির অমৃত ভারত স্টেশনের শিলান্যাস ঘটল পদ্মশ্রী শ্রী সনাতন রুদ্র পাল মহাশয়ের হাত ধরে।
অভিনন্দন। আজকের এই অমৃত ভারতের যে সমস্ত স্টেশন, কিছু স্টেশন 28টা স্টেশন ইস্টার্ন রেলের মধ্যে আমাদের হচ্ছে, তার মধ্যে নৈহাটি অঞ্চলের সমস্ত মানুষের একটা উৎসাহ যে এরকম একটা অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ইস্টার্ন রেলের কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। কারণ নিজেও আমি ইস্টার্ন রেলের কর্মরত এবং ইস্টার্ন রেলের হয়েই আমি এখনও খেলাধুলার মধ্যেই রয়েছি। তো এখানে এই স্টেশন খুব সুন্দরভাবে তৈরি হলে এই নৈহাটি অঞ্চলের সমস্ত মানুষের একটা খুব ভালো উদ্যোগ যে নিয়েছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তার জন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল এবং এই অঞ্চলের সমস্ত মানুষকে আমার আবার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য। মঞ্চে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সনাতন রুদ্র পাল মহাশয়, যিনি পদ্মশ্রী পেয়েছেন। তাকে আমি করমস্তকে প্রণাম জানাই। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রেলওয়ে, ইস্টার্ন রেলওয়ের PCCM মিস্টার সৌমিত্র মজুমদার মহাশয়। উপস্থিত আছেন সিনিয়র DCM শান্তনু চক্রবর্তী মহাশয়। উপস্থিত কবাডি প্লেয়ার, আমাদের গর্ব নৈহাটির বিশ্বজিৎ পালিত মহাশয়, তাকেও আমি আমার শ্রদ্ধা জানাই। যার পরিচালনায় আজকে এখানে হচ্ছে বলতে পারেন, এবং যিনি প্রতিনিয়ত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে কিভাবে এই প্রোগ্রামটা সফল করা যায়, তার বিশেষ প্রচেষ্টায় বলুন, তার বিশেষ পরিশ্রমে বলুন, আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সিনিয়র DME মিস্টার রোহিত রঞ্জনজিকে আমি আমার নমস্কার জানাই। রোহিতজির আজকের এই উদ্যোগে আজকে সত্যি এত মানুষ এক জায়গায় এসছেন, তাই সম্মানীয় মঞ্চকে আমি আমার প্রণাম জানাই। এবং আমার সামনে আমার পরম আত্মীয়, আমার মা, ভাই, বোনেরা, বন্ধুরা যারা এখানে এসেছেন, প্রত্যেককে আমি আমার করমস্তকে প্রণাম জানাই। আজকে একটা বিশেষ দিন। আপনারা জানেন ভারতবর্ষের নরেন্দ্র মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি যা যা প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, সবকটা প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করেছেন। আজ থেকে 3 বছর আগে তিনি বলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের একটা এইমসের প্রয়োজনীয়তা আছে। আমরা দেখলাম গতকাল ভারতবর্ষে 5টি রাজ্যে 5টি এইমস তৈরি হলো। তার মধ্যে কল্যাণী এইমসও কালকে উদ্ঘাটন হয়েছে। অদ্ভুত এই হসপিটাল, যেখানে বিশ্বমানের পরিষেবা আমরা পাবো। ঠিক সেইভাবেই প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের কিছু স্টেশনকে মডেল স্টেশন করতে হবে। কারণ প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেন, সবকি সাথ, সবকি বিশ্বাস আর সবকি প্রয়াস, প্রত্যেকের প্রয়াসের মধ্যে দিয়েই প্রত্যেকের বিশ্বাস অর্জন করে আমাদেরকে চলতে হবে। তিনি বলেননি নৈহাটির যিনি গর্ব, সারা ভারতবর্ষ যাকে প্রণাম জানায়, বঙ্কিমবাবু যিনি বন্দে মাতরমের রচয়িতা, তার যে জন্মস্থান নৈহাটি, বড়বার যে গর্বের জায়গা নৈহাটি। এছাড়াও আরও অনেক কবি, লেখক, শিল্পী, ক্রীড়াবিদ
এই নৈহাটি থেকে এসছেন, উঠে এসছেন, সেই নৈহাটির কথা মাথায় রেখে তিনি বলেছিলেন যে নৈহাটি স্টেশনকে মডেল স্টেশন করা হবে এবং আজকে তার ভিত্তি স্থাপন হচ্ছে। ঠিকই কয়েকদিনের মধ্যেই দেখতে পারবেন এই নৈহাটি স্টেশন অন্যান্য বড় স্টেশনের মধ্যে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আমি রেলওয়ের সমস্ত কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই, তারা আজকে আমাকে এখানে সুযোগ দিয়েছেন, আমন্ত্রণ করেছেন। আমি গর্বিত যে আমি আজকে আপনাদের সামনে আসতে পেরেছি এবং আরও গর্বিত যে আমি আপনাদের সামনে দুচর কথা বলতে পেরেছি। আজকে এই অঞ্চলের মানুষ আমরা অধিকাংশই দেখেছি রেলওয়ে কর্মচারী আছেন, আমরা দেশপ্রেমী মানুষ, তাই একবার আমরা সবাই মিলে বলবো ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। নমস্কার। ভারতবাসীর কাছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। স্যার, আপনার মূল্যবান সময় আপনি দিয়েছেন আজকের এই অনুষ্ঠানকে। এরপরে আমি ডেকে নেব আমাদের সৌমিত্র মজুমদার স্যারকে। আপনারা জোরে করতালি দিয়ে স্যারকে অভ্যর্থনা জানান। এরপরে আমি ডেকে নেব চক্রবর্তী স্যারকে।
অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। এরপরে আমি ডেকে নেব কোঅর্ডিনেটর, জোরে করতালি দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান। বিশ্বজিৎ পাল অর্জুন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত, আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করব একবার বিশ্বজিৎ পালিত অর্জুন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত কবাডি খেলোয়াড় অতিথি শ্রী সনাতন রুদ্র পাল পদ্মশ্রী প্রাপ্ত, তাকে আমাদের ইস্টার্ন রেলওয়ের PCCM স্যার সৌমিত্র মজুমদার উনি বরণ করে নিলেন আজকের বিশেষ অতিথি শ্রী জানাতে ও বরণ করে নিতে। শপথ দিয়ে বরণ করে নিতে। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আপনারা একটু জোরে করতালি দিন। দীপক মিত্র স্যারকে বরণ করে নিতে। অসংখ্য ধন্যবাদ। নৈহাটির নমস্কার। নৈহাটির থেকে নৈহাটি স্টেশনে নৈহাটির জনতা এতজন আপনারা এসছেন, তার জন্যে আমরা সত্যি আমার খুব ভালো লাগছে, আমি গর্বিত। আজকে আমাদের মধ্যে রেসপেক্টেড পদ্মশ্রী শ্রী সনাতন রুদ্র পাল মহাশয় আছেন আজকের প্রোগ্রামের, উনি বিশেষ অতিথি আমাদের মধ্যে আছেন। উনি নৈহাটিতে এসছেন, নৈহাটির গর্ব, বাংলার গর্ব, ভারতবর্ষের গর্ব। কেননা এইরকম শিল্পী যিনি মা দুর্গার প্রতিমাকে একেবারে যেটাকে জীবিত করে ফেলেন, তিনি আমাদের মধ্যে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ডি আছেন। আমাদের সঙ্গে আমাদের ZRUCC মেম্বার আছেন শ্রী মিত্র, এবং আমাদের সঙ্গে আমার সহকর্মী অফিসাররা শান্তনু এবং রোহিত আছেন, এবং আরেকজন সহকর্মী ইস্টার্ন রেলের সহকর্মী শ্রী বিশ্বজিৎ পালিত, যিনি ইস্টার্ন রেলের কর্মী হওয়া ছাড়া ভারতীয় ইন্ডিয়ান টিমের কাবাডি টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন এবং দুবার এশিয়ান গেমসে গোল্ড মেডেলিস্ট পেয়েছেন। শ্রী বিশ্বজিৎ পালিত আছেন আমাদের মধ্যে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমি কলকাতা থেকে আমাকে বলা হয়েছিল যে পূর্ব রেলের এই যে অনুষ্ঠানটি 28টি স্টেশন পূর্ব রেলে হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গতে 45টি স্টেশনে এই অনুষ্ঠানটি হচ্ছে, এবং এই অনুষ্ঠানটি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান, ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম আজকে আমাদের অনারেবল প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি আজকে ইনঅগ্রেট করবেন, কিছু প্রকল্প ইনঅগ্রেট করবেন, কিছু প্রকল্পের ফাউন্ডেশন স্টোন উনি রাখবেন, এবং কিছু প্রকল্প ডেডিকেশন টু দ্য নেশন করবেন। এতে কিছু স্টেশন ডেভেলপমেন্ট স্কিমস আছে, টোটাল 554 রেলওয়ে স্টেশন সারা ভারতবর্ষে উনি ডেডিকেট করবেন অথবা ফাউন্ডেশন স্টোন লে করবেন। এছাড়া প্রায় 1500
আরওবি যেটাকে আমরা বলি রোড ওভার ব্রিজ, অথবা আরইউবি মানে রেড আন্ডার ব্রিজ। আপনারা জানেন যে লেভেল ক্রসিং গেটস আমাদের যে আছে রেল গেট, তাতে যদি আমরা স্মুথ ট্রাফিক চালাই এবং স্মুথ ট্রাফিক চালানোর জন্যে সেটা রেল হোক অথবা রোড হোক, এই লেভেল ক্রসিং গেটের জন্যে হয় ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে অথবা যে রোড যাত্রী আছে তারা দাঁড়িয়ে পড়েন। তো যদি ওভারব্রিজ হয় অথবা আন্ডারব্রিজ হয়, তাতে উভয়েরই রেল অথবা রোড যাত্রী তাদের কিন্তু বিশাল একটা সুবিধে হবে। সেই জিনিসটাও আজকে আমাদের অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার এই প্রকল্পগুলি সূচনা করবেন, শুভ সূচনা করবেন। টোটাল 41,000 কোটি টাকার প্রকল্প আজকে সারা ভারতবর্ষে সূচনা হবে। 45টি স্টেশন, 48টি রোড ওভারব্রিজ অথবা রোড আন্ডারব্রিজ পশ্চিমবঙ্গে, তার মধ্যে থেকে 28টি স্টেশন পূর্ব রেলে এবং এই 28টির মধ্যে 17টি স্টেশন পশ্চিমবঙ্গে। এছাড়া পূর্ব রেলের কিছু অংশ ঝাড়খণ্ড এবং কিছু অংশ বিহারে পড়ে, ওখানেও বিভিন্ন জায়গায় 28টা জায়গায়। আর এছাড়া আরও প্রায় 31টি স্থানে আরইউবির অল ওভার ইস্টার্ন রেলওয়ে আমাদের আজকে এই অনুষ্ঠানগুলি হচ্ছে। এবং অন বিহাফ অফ ইস্টার্ন রেলওয়ে আমি সকল ডিগনিটারিজদের যারা এখানে গ্যাদার হয়েছেন, এখানে এসছেন, তাদের স্বাগত জানাই। আপনারা এতজন এখানে এসছেন, তার জন্যে আমি স্বাগত জানাই আপনাদের সকলকে। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম এটা কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, একটা লং টার্ম প্রসেস, যাতে একটা স্টেশনের একটা সার্বিকভাবে একটা কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্ট হবে, একটা রিডেভেলপমেন্ট হবে। আপনি স্টেশন কনকোর্স বলুন বা স্টেশনের বাইরে সার্কুলেটিং এরিয়া বলুন, আপনি ওয়েটিং হলস বলুন, লাইটিং বলুন, যাত্রীদের বসার বেঞ্চ বলুন, টয়লেটস বলুন, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্যাসিলিটি বলুন, এই সমস্ত ইমপ্রুভমেন্ট হবে। এবং আমি যদি নৈহাটি স্টেশনের কথা বলি, তো 7.85 crores 7,85,00,000 টাকা প্রকল্প অ্যানাউন্স হয়েছে। এরপর হয়তো কয়েক মাস বা বছর খানেকের মধ্যে এই পুরো সমস্ত কাজ নৈহাটি স্টেশনে হবে। আপনারা যদি দেখেন 2 নম্বর 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে কাজ অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এবং আশা করছি যে নৈহাটি স্টেশনটা ঋষি বঙ্কিমের জন্মস্থানের স্টেশনটাকে আমরা এই ঐতিহাসিক স্টেশনকে আমরা খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলতে পারব। আপনারা এসছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এরপর 12:30টার সময় প্রধানমন্ত্রী আসবেন, এসে প্রকল্পগুলোকে ইনঅগারেট করবেন এবং সবাইকে অনুরোধ করব সেই মুহূর্তের জন্যে আপনারা যেন অপেক্ষা করেন এবং সেই মুহূর্তকে আপনারা এক্সপিরিয়েন্স করেন। আমরা সবাই মিলে সারা ভারতবর্ষে সেই মুহূর্তটাকে এক্সপিরিয়েন্স করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের তরফ থেকে কিছু ছোট্ট উপহার, সবাই জোরে করতালি দিন। একটি উপহার তুলে দেবেন, জোরে করতালি দিন আপনারা। এবং শ্রী রূপক মিত্রের হাতে আমরা তুলে দেব আজকের পুরস্কার। My best regards and gratitude to the dignitaries and the officials who came to attend this program by managing time for their busy schedule. I wish to convey my heartfelt thanks to the beloved people and organizations for their continuous support and cooperation. This Herculean task would not have been possible only because you were beside us all the time. I am indebted to you for what you have done, and again
communicate my best regard to you all. And last but not least, I would like to thank all in charges, supervisors, junior engineers, the staff from different departments, commercial department, personal department, engineering department, electrical department, RPF. Without their efforts, this work couldn't be done successfully. I want to take 2-3 names. I would like to thank Sayan Kachrapara, Rajesh Kumar, from engineering Sri Satish Sudhanshu, from SNT A Kundu, from electrical Birendra Kumar Pal, from commercial Kalyan Chaudhary, from personal senior DPO Sialda was himself present, D Hansda, and Pintu Kumar was there. For security AC Sen, and for scouts and guide Vijay Viswas and Subhankar Sil. I want to thank them all. Also CHI, AME Nehati, SCW, Jyotirmay Das. I want to thank you all. And last I want to thank the very good anchor to conduct the whole